پہلا کرنتھیوں 15واں باب۔ ابھی بچوں کو جو آپ کے ساتھ ہیں انہیں خاموش کروائیں اور انجیل کی برکت کو رسیو کیجئے، اس کو بھی خاموش کیجئے۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب 3 اور 4 آیت آج کتاب خدا کے اندر سے ہم سننے والے ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے، آئیں ذرا مل کر ہی پڑھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق دل نال پڑھنا جی تو میں پھر گل کر سکاں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ آمین۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ کتنوں کو آج سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو چرچ کا جواب آمین سے ہوگا۔ ہم نے پڑھا ہے بزرگ پالوس رسول کی جانب سے کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط 15واں باب، اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ جو بات مجھے پہنچی میں نے تم تک پہنچا دی۔ اب اس تک بات پہنچی کیا ہے؟ پہنچی یہ ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے، چرچ کی آواز، گناہوں کے مطابق ہمارے گناہوں کے واسطے موا اور نہیں پٹھا نہیں والا کرنا، اور مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اور سارے تسی کہنا تو میں بول پڑنا ہے، اور پھر آگے لکھا ہے اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے، چرچ زندہ ہے، مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس کا مطلب پالوس رسول ربی ہے اس زمانے کے گملیل استاد سے، جو بائبل مقدس کی تاریخ کا، شریعت کا ایک استاد گزرا ہے، اس کا طالب علم ہے، اور ملاکی تک کے صحائف کا بزرگ پالوس انجیلی بیان سے پہلے مطالعہ کر چکے ہیں، اور ملاکی تک کے استاد ہیں۔ پرانے عہد نامے کے نقطے شوشے کا سبب کوئی رشوت خوری کا منصوبہ نہیں ہے، بلکہ جان دینے کا ذریعہ اور سبب یہ ہے کہ کتاب مقدس کے مطابق اسے مرنا ہوگا، کلام کی ہدایت نامے کے اوپر اسے مصروف ہونا ہوگا، کلام کی باتوں کو پورا کر کے مرنا ہوگا، کلام کے اندر جو کچھ لکھا ہے اسے اپنی ذات اقدس کے اندر اسے پورا کر کے صلیب کے اوپر جان دینی ہوگی۔ پالوس رسول یہی کہنا چاہتے ہیں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے، تھینک یو، ہمارے گناہوں کے لیے موا۔ آپ یاد کر سکتے ہیں عدن کے اندر آدم ہے، ہوا ہے، اور ان سے گناہ سرزد ہو گیا، اور جیسے ہی گناہ سرزد ہوا خدا ان چاروں کو لائن میں لاتا ہے، ہوا کو لائن میں لاتا ہے، آدم کو لائن کے اندر لاتا ہے، خدا وہاں ابلیس کو اور سانپ کو لائن کے اندر لاتا ہے۔ جب ابلیس کی بات کی جاتی ہے تو خدا کلام کرتا ہے، میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور وہ تیرے سر کو، چرچ کی آواز، وہ تیرے سر کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم بالا سے پہلے کی باتیں میں کر رہا ہوں، آسمان اور زمین جب بن گئے ہیں اس کے بعد کے منظر کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ بائبل بتاتی ہے کلام خدا کے مطابق اب سر کو کچلنے کے لیے کسی کو آنا ہوگا، اور پھر لکھا ہے تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ کنہیں گل سمجھ آ رہی ہے؟ داؤد بھائی بھی سن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا ہے۔ بزرگ آدم سے گناہ ہوا، کروایا عورت کے ہاتھوں، ابلیس نے آ کر سارے معاملے کو
सारी चीजों को कंट्रोल किया। और बाइबल बताती है कि जब ये गुनाह इनकी रविशों के अंदर आ गया, गुनाह इनकी लाइफ के अंदर ज़रायत कर गया, तो गुनाह से इंसान छूट नहीं पाता था। खुदा ने मूसा के ऊपर तौरात को नाजिल किया, खुदा ने उसके ऊपर अहकाम अशरा को नाजिल किया ताकि इंसान बाज आ जाए। खुदा कहने लगा कि एक खुदा को मानना, तू खुदा का दिन पाक मानना, तू माँ बाप की इज्जत करना, तू चोरी ना करना, तू ज़ना ना करना। एक चार्ट खुदा ने इंसान को दिया। रीजन ये है कि इंसान गुनाहों से बाज आ जाए, और इंसान गुनाहों के नीचे धंसता चला गया। इसका मतलब यह है कि कलाम के मुताबिक यीशु मसीह को आना था, इंसान को छुड़वाना था, इंसान को बचाना था। नबी आता था और आकर कहता था, ए इंसान बाज आ, पर इंसान बाज नहीं आ पा रहा था। जैसे ही माफी और तौबा के कलाम को कबूल करता था, अगले ही लम्हे के अंदर उसकी जिंदगी के अंदर फिर ऐब और गुनाह आ जाता था। बहनों सुन रही हैं जी, मैं तो आप खंडे ना सी घाटा पर किसी तो फिर सुन दे रहा। और मैं अर्ज कर रहा था कि गुनाह इंसान की जिंदगी के अंदर बादशाही करने लगा। और बाइबल बताती है जब ऐसा माजरा हो रहा था तो इंसानों के दरमियान कलाम आ रहे थे, नबी आ रहे थे, पैगंबर आ रहे थे, पर इंसानों के गुनाहों की माफी का सिलसिला पूरा नहीं होने पा रहा था। कलाम के अंदर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, और अगर आपने किसी से ये नहीं कहा कि तौबा करो, बल्कि आपने तो आकर कहा, बोझ से दबे मांदे लोगों सब ठीक है ना। फिर जरा हम मेरे नाल ही इंजील सुनानी है। ये देखिए मैंने बाइबल बंद कर दी है, मैं आप बस 5 मिनट लेने वाला हूँ। अब मेरे साथ आपने इंजील सुनानी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बोझ के दबे मांदे लोगों सब मैं तुम्हें मेरा जुहा नरम और मुलायम है, मेरा बोझ हल्का है, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मुझ पर गुनाहों की तमाम मजबूरियां, जिस गुनाह से तेरी जान नहीं छूटती, जो कहता है आदतन गुनाह है, जो ये कहता है फितरतन गुनाह है, जो ये कहता है कि ये तो खानदानी गुनाह है, अरे ये तो मेरा बाप भी करता था, उसका बाप भी करता था, मुझसे अब इससे छूटा नहीं जाता। यीशु मसीह ने कहा, वो सारे के सारे गुनाह जो तेरी जान नहीं छोड़ रहे, वो मुझे दे दे, मैं इसे अपने ऊपर ला दूंगा, तेरी जान आराम पाएगी। मैं कलाम के मुताबिक गुनाहों के लिए मरने के लिए आया हूँ। और रोमियों का क्या मुझ पर इख्तियार, यहूदियों की क्या मुझ पर साजिश चलेगी? ये तो कलाम का फैसला है कि खुदा का कलाम ये कहता है, अब खुदा को ये पसंद आया कि आपकी और मेरी सलामती के लिए, आपकी और मेरी तरक्की के लिए मुशक्कतें उसने उठा ली है। हमारी बदकिरदारियां उस पर लाद दी गई हैं, वो बदकिरदारियों के सबब से घायल किया गया है, वो मजबूरियों के सबब से नहीं बल्कि खताओं के सबब से कुचला गया है। उसकी अपनी कोई खता नहीं है, उसका अपना कोई ऐब नहीं है, उसका अपना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि वो तो गुनाहों के वास्ते मुआ है। और गुनाह जमाने के हैं, गुनाह दुनिया के हैं, गुनाह जहान के हैं, और जहान के बर्रे की सूरत में नहीं बल्कि वो तो खुदा का बर्रा बन गया है, जो कलाम के मुताबिक मरने के लिए तैयार था। और सलीब पर आकर उसने कहा, तमाम हुआ, मैंने सारे वो नविश्ते पूरे कर दिए, मैंने वो सारे काम पूरे कर दिए, मैंने वो सारे बाइबल के हिस्से पूरे कर दिए जिस पर आंखें लगाए हुए उलमाए दीन बैठे थे कि मसीहा आएगा, मिसाया आएगा, छुड़ाने वाला आएगा, बचाने वाला आएगा। अरे देखो, जब मैं आया तो लंगड़ों ने चौकड़ियां भरना शुरू कर दी, मैं आया तो गूंगों ने रागनी गाना शुरू कर दी, मैं आया तो अंधों की आंखों में रोशनियां आ गई, मैं आया तो मुर्दों में जान फूंक दी गई, मैं आया तो बेरुखी जिंदगियों में रौनकें आ गई, मैं आया तो अंधेरे में रोशनी की गवाही सुनाई दी गई, क्योंकि मैं नूरों के बाप में से निकला, नूर बनकर आया। और नूर को इन्होंने पकड़ा और पकड़कर सलीब पर चढ़ा दिया ताकि दिए की तरह टिमटिमाता हुआ बुझ जाए। और बाइबल बताती है वो मुआ सलीब के ऊपर मुआ ही नहीं बल्कि दफन हुआ, और दफन करने के लिए अरमतिया और निकोदेमुस आए और आकर कफनाया और दफनाया, और दफनाने के बाद भारी पत्थर रख दिया। और बाइबल बताती है वो किताब मुकद्दस के मुताबिक
तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और इसलिए फकीरों और फरीसियों ने जाकर पिलातुस के पास इल्तमासन कहा कि 3 दिन का पहरा चाहिए, ना 2 दिन का पहरा, ना 1 दिन का पहरा, ना 4 दिन का पहरा, क्योंकि अगर इसे जी उठना है, अगर इसे साबित करना है कि ये मसीह है, अगर इसे साबित करना है कि ये खुदा का मसाया है, तो तीसरे दिन ये मुर्दों में से जी उठेगा। लिहाजा हमें सिपाहियों का गोल, हमें सिपाहियों का प्रोटोकॉल, हमें सिपाहियों का एक जत्था। आप मेरे साथ हैं या आप अपने साथ ही? मैं कल ही बोली जा रहे, अगर मेरे साथ है तो आमीन कह सकते हैं। आमीन। ये हुण तुहाडा गवांढी करे मुंह थल्ले, ते तुहाडे ते डबल जिम्मेदारी है काम करा कि जे तुसीं ओहदे नाल बोले ते तुहाडी जिम्मेदारी मैं इत्थों ही पूरी कर। किन्नियां नूं गल समझ आ रही? इत्थों करांगे ना फिर सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आएगी जिम्मेदारी इसी। आप कितनों को समझ आई? आमीन। हाँ, बाइबल बताती है, मैं अर्ज कर रहा था, खुदावंद यीशु मसीह को जुमे की शाम के अंदर कब्र के अंदर उतार दिया गया, भारी पत्थर को रख दिया गया, सिपाहियों का इंतजाम कर दिया गया, मांगे गए हैं सिपाही 3 दिनों के लिए। उन्होंने कहा अगर ये पहले ही दिन के अंदर शोर मच गया कि वो जी उठा तो कोई फायदा नहीं होगा, दूसरे दिन जी उठा कोई फायदा नहीं होगा, चौथे दिन जी उठा तो कोई फायदा नहीं, सब कुछ बेकार हो जाएगा, क्योंकि कलाम में लिखा है वो तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। मुआ भी किताबे मुकद्दस के मुताबिक, दफन हुआ किताबे मुकद्दस के मुताबिक। अगर उसे जी भी उठना है तो पूरे नविश्तों पर आना होगा, अगर उसे जी भी उठना है तो पूरे कलाम के हिस्सों के अंदर पूरा होना होगा। फकी आए, फरीसी आए और आकर पिलातुस से कहते हैं इसने अपने जीते जी कहा था तुम इस मुकद्दस को ढा दो तो मैं तीसरे दिन दोबारा इसे मैं तीसरे दिन दोबारा इसे उठा खड़ा करूंगा। इसका मतलब इसका दावा फीका पड़ जाएगा, इसका दावा झूठा पड़ जाएगा। इसने अपने जीते जी कहा था मुझे अपनी जान देने का और इसे वापस लेने का इख्तियार है, इसका इख्तियार फीका पड़ जाएगा। इसके रोब और दबदबे की बातें खत्म हो जाएंगी, इसकी सारी वो बातें जो ये जिंदगी के अंदर करता आया ये झूठा साबित हो जाएगा। और झूठा ही नहीं साबित होगा बल्कि इसकी मुनादी भी फेल, इसके शागिर्द भी फेल, इसके पैरोकार भी फेल। और जिस तरह इसको हमने पकड़कर मसलूब करवा कर कब्र में उतारा है, बाकियों का भी ऐसा ही सलूक करेंगे। हमें सिपाही दे और सिपाहियों का पहरा 3 दिन का होगा। बाइबल बताती है 3 दिन का पहरा देने वाले आ गए पहरेदार बनकर और कब्र की निगरानी कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। और वो मुर्दा यीशु की रखवाली के अंदर आए हैं, उनको नहीं पता कि यीशु मसीह जिंदा हो जाएगा, वो ये नहीं जानते, बल्कि वो तो ये जानते हैं कि कोई बाहर से आएगा जिनको शागिर्दों के नाम दिए गए हैं। हम नहीं जानते वो शागिर्द कौन से होंगे। रोमी सिपाहियों के ख्याल ये है कि शागिर्द आएंगे और आप मुझसे आकर झगड़ा करेंगे। अगर झगड़ा किया तो हम तो बड़े ओहदेदार लोग हैं, हम तो प्रैक्टिस किए हुए तैयार लोग हैं, हम इन्हें रोक मिलेंगे और इनका मुकाबला भी करेंगे। हमें हुक्म यह है कि जो अंदर मुआ पड़ा है उसकी लाश को कोई चुरा ना ले जाए। ये कम अकले ये भूल गए थे कि कुल ज़मानों का इख्तियार रखने वाला, आसमान और जमीन को चलाने वाला, जर्रे जर्रे का कायनात का मालिक मुर्दा नहीं है बल्कि कलाम के हिस्सों को पूरा करने के लिए कब्र में उतरा है। और कब्र में इसलिए उतरा, अजीजों जरा सुनिएगा, दिल थाम कर सुनिएगा, कानों को खोल कर सुनिएगा कि कब्र में वो इसलिए उतरा क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। आदम से गुनाह हुआ, खुदा कलाम करता है आदम जिस दिन तूने ये फल खाया तू मरेगा। इसका मतलब आदम मर गया फल खाने के सबब से। मेरा यीशु जिंदगी के अंदर आया और जाना कि आदम मर कर जमीन के नीचे गया है, कब्र में गया है। अरे आदम को छुड़ाने का जिम्मा मेरा है, आदम को ले जाने का जिम्मा मेरा है। आदम कब्र में है, जमीन के नीचे है, मुझे भी जमीन के नीचे ही जाना होगा। मेरा आका इसीलिए मर गया ताकि मुर्दा आदम को जिंदगी का दम दे के कब्र के बंद से छुड़ा कर लिया। उसने मौत के जबड़े को तोड़ा इसलिए कि साडे भी बड़े जींदे रहन। कोई आमीन कह सकता है? उसने कहा इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और इब्ने आदम खोया हुआ था
इब्ने आदम जो आदम की औलाद है वो खोए हुए कब्र के नीचे चले गए, वो कब्र में उतर गया ताकि वहां से उन्हें छुड़ा वो को छुड़ा के ले आए। ताली मारनी तो यीशु वास्ते। मुझे पता है कि आपकी नींदें पूरी नहीं हुई, पर यकीन माने हम खुदा के लोग सोना आए जो दुनिया को तो बस करने आए फिर वो करते। आखिरी 1 मिनट और बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह कब्र में उतर गया ताकि मुर्दा आदम को जिंदगी मिल सके। सिपाही बाहर पहरा दे रहे थे, कलाम के मुताबिक सब कुछ हो रहा था और बाइबल बताती है कि अब जब खुदावंद यीशु मसीह का तीसरा दिन था, कब्र में उतारे हुए तीसरे दिन की सुबह थी, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, आपने अपने जीते जी कहा था जिस तरह यूना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रातें रहा था, जरूर है कि इब्ने आदम भी कब्र के अंदर जमीन के नीचे 3 दिन और 3 रातें रहे। यूना मछली के पेट से जिंदा बाहर आया और इब्ने आदम जाओ जलाल का बादशाह कब्र के मुंह पे पांव रख कर कहता है, ऐ मौत तू पता का लुकमा हो गई, मौत तेरा जंग कहाँ रहा। यूना की मुनादी पर लोगों ने तौबा कर ली। आज मैं आपको खुशी की खबर देना चाहता हूँ, 7 अरब से ज्यादा दुनिया के अंदर लोग हैं, पर यीशु की गवाही ने बहुतों को पकड़ कर रख लिया है। यीशु की गवाही ने बहुतों के दिलों को झंझोड़ा है कि वो मुर्दा नहीं बल्कि मुर्दों में से। और ये गवाही देने वाले पहले आसमानों के लश्कर के जवान, फिर सिपाही, सिपाहियों के बाद औरतें और औरतों के बाद 12 शागिर्द और उनके बाद 3000, फिर 5000 और आज मुल्तान के अंदर बैठे हुए हम भी मौजूद हैं। हम भी उसी भीड़ का हिस्सा है जो उस दिन शोर मचा रही थी। आज हम भी शोर मचा कर कहते हैं, मेरा यीशु मुर्दा नहीं है बल्कि मुर्दों में से जी उठा है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक नहीं बल्कि नहीं। हाथ काट के दसो तो दुआ करांगा हमेशा की। भैनों का हाथ नहीं उठ रहे, उन्होंने थल्लों हाथ दे के चुक के दस्यो, हमेशा की रीजन ये है कि वो मेरे गुनाहों के लिए हुआ है। अब गुनाहों का हम पर कोई जोर नहीं है। जिसने गुनाहों को मारा है अपने आप को मरने के लिए अपना बदन दे दिया ताकि आप और मैं छुड़ाए भी जाएं, बचाए भी जाएं। खुदा आज शाम, आज दोपहर हम सबों को बरकत बख्शे।